Hello everyone, let us read the question for today. An electron moving with the speed u along the positive x-axis at y equal to 0 enters the region of uniform magnetic field which exists to the right of y-axis. The direction of magnetic field is inside the plane. The electron exits from the region after some time with the speed of v and at a coordinate of y. Then which of the following statements are true? Here we see that the particle enters the region like this and has a negative charge since it is an electron. If we take the cross product in this direction, then we'll see that the magnetic field is acting inside the plane, like suppose in this direction. If we rotate our fingers keeping them in the direction of the x-axis, then they will rotate like this, and the direction of thumb will be pointing towards the y-axis, that is upwards. And since we have the charge to be negative, we write F due to magnetic field is equal to Q into V cross B. V cross B is pointing towards the positive axis, and since the charge is negative, therefore the direction of the net force will be opposite, that is towards the negative axis. So we write Fn is in negative axis. Therefore, the region in which the particle will exit cannot be positive y but will be negative. From here, our two options are ruled out, which is option number B and option number C, where the y has been given to be positive. These will be wrong. Now option number A and D talk about the magnitudes of U and V. We know that magnetic force always acts perpendicular to the direction of motion. Due to this reason, we can write that work done, which is F dot D, is always equal to 0 because it involves a term of cos theta, which will be equal to 0 in all these cases. Since work done by the magnetic field is 0, therefore it cannot change the kinetic energy. Therefore the velocity has to remain same. Therefore the V will be equal to U final. So our correct answer to this question should be D. Thank you. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q ये हमारा मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ये इंटर करता है हमारा एक रीजन में जिसमें हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एग्जिस्ट करता है और इसकी डायरेक्शन अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि ये रीजन जो हमारा एक्सटेंड करता है वो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ v क्या हमारी रिक्वायर होगी सो दैट का जो पार्टिकल है वो जस्ट इंटर करे इन द रीजन x ग्रेटर देन b। तो अगर अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x डायरेक्शन है, ये y, और जो हमारा z डायरेक्शन है वो मतलब पॉजिटिव जेट डायरेक्शन है जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसमें कह रहा है निगेटिव जेट डायरेक्शन यानी इनटू द प्लेन हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस रीजन में। तो अगर हम रीजन लिखें तो x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं यहाँ पे है, x इज इक्वल टू बी मान लेते हैं यहाँ पे है। तो अब हम जानते हैं कि जब हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर है इसके मोशन के पार्टिकल वगैरह हम मान लेते हैं कि यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी जो फोर्स लगेगा वो इस पे कैसा लगेगा, q v b के बराबर लगेगा। f की जो मैग्नीट्यूड होगी और जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चाहे y एक्सिस होगा या फिर नेगेटिव y एक्सिस हो सकता है। तो हम पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि कौन सा होगा। तो v क्रॉस b होता है, तो v की डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो i कैप में है और b की डायरेक्शन देखें तो ये है हमारा माइनस ऑफ k कैप। तो i क्रॉस k हमारा माइनस g के बराबर होता है, यानी जो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन आई वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, पॉजिटिव y एक्सिस में। यानी ये जब हमारा इस रीजन में इंटर करेगा तो ये हमारा कुछ सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो यानी वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही चेंज करेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो यानी ये कुछ सर्कुलर मोशन टाइप का करेगा। अब जो इसका रेडियस है
वो किस पे डिपेंड करेगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो इसको जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू वी बी हमारा बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अगर हम देखें तो एक v हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बी आर बाई एम के। अब अगर हम देखें तो q हमारा कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, r के। यानी v इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेडियस भी इस सर्कुलर पाथ का इंक्रीज करेगा। तो हमको क्या कहना है कि ये मतलब कि जस्ट इंटर करे x ग्रेटर देन b रीजन में। तो यानी जस्ट इंटर करने के लिए जो इसका रेडियस होना चाहिए सर्कुलर पाथ का वो b माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बी माइनस ए बाई एम। ये जस्ट इंटर करने के लिए है, मतलब कि ये जस्ट बी पे पहुंचेगा हमारा। अब इससे चाहे ग्रेटर हो चाहे इसके बराबर हो तो ये मतलब हमारा बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा या फिर उससे आगे तक पहुंच सकता है। तो जस्ट इंटर के लिए अगर हम सिर्फ देखेंगे तो क्यू बी माइनस ए बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। Hello students, today our question is an ionized gas contain both positive and negative ions. If it is subjected simultaneously to an electric field along the x negative direction and a magnetic field along the y direction, positive y direction, and the negative ions towards y direction here. So we have to find the electric field is along which direction. So the solution of this question is, so we know that F is equals to force is equals to Q into E here. Q is the charge here and F is the force here. So we can write here F is force and Q is the charge here, positive or negative, and E is electrical field here. If we know that if Q is positive, then force is also in the same direction as electrical field, and if Q is negative, then force is in opposite to the electrical field. So we know that this formula here. So for positive charge, if Q is positive, for positive charge, if Q is positive here, so we get F is equals to force positive is equals to here is equals to Q into V into E here, voltage into B here. So from this we can write here F of B is equals to, this is F of B for positive charge here. So this will equals to Q into Vi here, that is positive x-axis here, and Bk cap here, Vi cap, and we can write this as B of J cap here. So this is F of B here, force along B direction. So we can write here F of B is equals to plus Q plus time of Q Vb into minus J if y-axis is negative here. So, and for now we can find for negative charge, Q is negative here. So we can write FB is equals to minus Q into V into B. So we can write here F of B is equals to minus Q into V of I into B of J here, B of J in the direction of x, positive x and positive y here. So from this we can write here F of B is equals to, so this will equals to minus Q into Bi into Bj here, and we can write this as F of B is equals to Q into Vb and minus J here.
the j cap here. Here is also j cap. So from both negative and positive axis, from both negative and positive charge, we get y axis is negative. So we get from negative and positive charge, all ions deflects towards, we can say that all ions deflect towards minus y direction here, negative of y direction here. So this is the required answer for the question. Thank you. Hello, we are given with the question, and the question says a charged particle is released from rest, right, in the region of steady and uniform electric and magnetic field. So there is electric field and magnetic field which are parallel to each other. The particle will move in a which way, right? So it starts to move along the field, right? So what would happen is, since we have like this, the velocity is also in this direction, right? It is moving with velocity in this direction. The electric field as well as the magnetic field is also in this direction, right? The magnetic field is also in this direction, correct? So what we could say is that the force due to electric field would be equal to QE, right? And force due to magnetic field would be equal to Q into V cross B, right? Since V and B are parallel, so it would be QVB sine theta. Since they are parallel, that means theta is equal to 0 degree, so that would be equal to 0, right? So there would be only a single force, that is this, right? So due to that there would be an acceleration. There would be acceleration, right, due to Fe. That is also constant acceleration, right? That is constant acceleration. Acceleration would be equal to QE by M, right? So what we could say is that when it is moving in the direction and it is accelerating, so it will move in a straight line. So our answer would be option A, straight line. Thank you. Student, the question is two particles X and Y having equal charge after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of mass of X to that of Y is, here are four options. So students, as we know that the radius of circular path for X particle is r1, so we can write that r1 will be equal to m1 v1 upon qb, and similarly we can write that r2 is equal to m2 v2 divided by qb, because the charge is same for both X and Y particles, and here we have to find the value of m1 divided by m2. So students, as the potential is same potential difference, so the kinetic energy half m1 v1 square will be equal to half m2 v2 square. So students, we can find the value of v1, which will be equal to r1 qb divided by m1. Similarly, we can write for v2, then v2 will be equal to r2 qb divided by m2. So we can put the values of v1 and v2 in this equation. So we can cancel out 1 by 2, and now putting the values of v1 and v2, here v1 is r1 qb divided by m1 whole square
is equal to m2 and b2 is r2 qb divided by m2 square. So we can simplify further this equation, then we can write m1 r1 square q square b square divided by m1 square will be equal to m2 r2 square q square b square and divided by m2 square. So we can further simplify this equation. Here m1 will be cancelled out with m1 square and we can do like this. So m2 and it will be equal to r1 square divided by m1 is equal to r2 square divided by m2. So we can write that m1 upon m2 square is equal to r1 upon r2 square. So the answer of this question is option C, r1 upon r2 square. Thank you, students. Hello everyone. A conductor carrying constant current I is kept in the xy plane in uniform magnetic field V. If F is the magnitude of total magnetic force acting on the conductor, then the correct statement is /R. So the question is asking us to find out that which of these statements is correct regarding the situation given to us in the question. The vector sum of all current elements in wires not parallel to x-axis will lead to a resultant current element of length r and current along x-axis. Total length of the current element, which can be denoted by dl, is equals to 2 into L plus R x cap. Therefore, the force acting on this element, which will be denoted by F vector, is equals to current I multiplied by 2 into L plus R x cap cross B vector. Now, if B vector is along the direction of z axis, then the force will be along negative y axis and will be proportional to L plus R. If B vector is along x axis, then the force will be 0 as the vector product will be 0. If B vector is along y axis, then the force will be along z axis and will be proportional to L plus R. Therefore, from this explanation, we can say that statement A, B and C are true. Thank you. Hello, we are given with a question, and the question says a particle of mass m and a positive charge q with a constant velocity 4 meter per second enters the region of uniform static magnetic field normal to the xy plane. The region of magnetic field extends from x equals to 0 to x equal to L for all values of y. After passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with a velocity u2, that is this much, right? So what happens? So first of all, I'll draw the diagram. So this is the diagram. Now what we have is time period of a circular motion to be equal to 2 pi m by q into b. This is time period, right? According to this diagram, right? So what would be theta? Since we have y component and x component, right? So y component is in this direction and x component in this direction, right? So that is, this is the overall velocity. So since this is theta, so theta would, tan theta would be, not tan theta, sine theta. Tan theta, because we are given with y component and x component, right? So according to that, we have to write tan theta. That would be equal to opposite, right? So that is y component. So that is 2 and x by x component. So that is 2 by root 3. So that would be 1 by root 3, right? So from here, theta would be equal to 30 degree. That is what theta turns out to be. Now it is traveling how much amount of portion? So it is traveling 30 degree out of total
2 pi, right? That is 360 degree. Correct? Into the time period. The fraction of circular motion it is traveling, right, into time t. That would give us the time spent inside the magnetic field. So that would be equal to, since this would be 1 by 12 into 2 pi m by q b, right? So from here, this time would turn out to be equal to pi m by 6 qb. Correct? Now, since this is the time period that is given to us, right, that is 10 milliseconds. It emerges on the other side after 10 milliseconds. So this is given to us as 10 millisecond. Milli is 10 to the power minus 3, right? So what we can write is pi m by 6 qb to be equal to 1 by 100. So magnetic field according to this formula would be equal to, B would go that side, 100 pi m by 6 qb. So we can write that to be equal to 50 pi m by 3 qb, right? And what we can say is that, as seen from the figure, as we can see the figure, right? Since velocity initially was in this direction along x direction, right? And magnetic field would, the direction of magnetic field would be in which direction, since final velocity turns out to be in x comma y direction, in xy plane, right? So if force is acting in y direction, right, force would be acting in some xy plane itself, velocity was in this direction, so obviously the magnetic field according to right-hand Fleming rule would be coming out of the surface, right? So that would be along positive z direction, right? So our answer would be option B and option C. So our answer is option B and option C. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे कैप डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जे कैप डायरेक्शन में, और जो एक पार्टिकल है चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल की, उसकी वेलोसिटी एक्स के रेस्पेक्ट में कुछ थीटा डायरेक्शन पे होगी। ये उसमें गिवन है कि कुछ थीटा डायरेक्शन में एक्स की वेलोसिटी हमने कुछ दे रखी है, यानी इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन से वेलोसिटी दे रखी है। अब तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब हमको चारों ऑप्शन के ट्रूनेस के बारे में पता करना है। सबसे पहले दे रखा थीटा इक्वल्स टू 0 पे द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन। जब थीटा 0 होगा तो ये एक्स और जेड प्लेन में रोटेट करेगा, यानी इसका रोटेशन कुछ ऐसा होगा एक्स और जेड प्लेन में। और चूंकि यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये ऊपर भी मूव करेगा, यानी ये एक्स और जेड प्लेन में मूव करता करता ये वैसे ऊपर जाएगा, ये इसे ऊपर मूव करता जाएगा। तो हमारा पहला जो ये पार्ट है सर्कुलर पाथ, तो पहला पार्ट हमारा गलत हो गया, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी पार्ट। तो हमारा पहला गलत हो गया। बी दे रखा एक थीटा इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल अंडरगो हेलिकल मोशन। अब ये हेलिकल मोशन नहीं है, अगर ये एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होता और वाई प्लेन में मूव करता तो ये एक हेलिकल पाथ होता, लेकिन ये हेलिकल पाथ भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम सी पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री दे रखा है और इसमें पूछ रखा, इसमें है ना कहा है कि हेलिकल मोशन होगा इंक्रीजिंग पिच के साथ। तो हम देखते हैं थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री हुआ, थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री, तो ये इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसकी वजह से एक्स जेड डायरेक्शन में एक
सर्कुलर मोशन होगा, और जो इसका y कंपोनेंट होगा उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो हमारा कुछ जो बनेगा वो कुछ इस शेप का होगा। ये सी पार्ट हुई हमारा। अब हमारा बी पार्ट गलत इसलिए था क्योंकि इसमें कांस्टेंट पिच दे रखा है, और हमारा सी पार्ट सही होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल पिच दे रखा है कि पिच इंक्रीज हो रहा। हाँ, हमारा पिच इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही तो पिच इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा सी पार्ट सही हो गया। अब हमारा डी पार्ट है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा ई और बी के पैरेलल हो गया, तो बी के साथ पैरेलल हो गया, तो क्या होगा कि अब इस पे सर्कुलर मोशन नहीं करेगा क्योंकि वी इसमें बी और वी को परपेंडिकुलर होना होता है सर्कुलर मोशन के लिए, या फिर कुछ एंगल होना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे बी इंटू वी साइन थीटा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये इस वेलोसिटी वी पे बी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक एक्सेलरेशन लगेगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका, तो इधर एक लीनियर मोशन होगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन होगा। तो हमारा डी पार्ट भी करेक्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं सी और डी दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पैरेलल पाथ। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों स्ट्रेट पैरेलल पाथ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। अब कह रहा है कि दे इंटर अ सेमी इनफाइनाइट रीजन, वो सेमी इनफाइनाइट रीजन में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब वो फील्ड में इंटर करेंगे तो उनका पाथ क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखिए इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाई है, ठीक है। ये ट्रेजेक्ट्री किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, और ये किसकी है, प्रोटॉन की है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम एंगल पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके बाद दोनों का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों पे क्या होगा, फोर्स इससे फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से क्या होगा, दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, चार्ज दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी जब वो फील्ड से आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो भी उनके पाथ क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं। ये देखिए, ये इधर मूव कर रहा है और ये भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ए ऑप्शन, दे विल नेवर कम आउट मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सर्कुलर पाथ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जाएंगे और निकल जाएंगे। ओके, तो सेमी फाइनाइट रीजन है, सेमी इनफाइनाइट रीजन, तो इस वजह से ये क्या होगा, ए ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, बट बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ओके, अगली जो दो ऑप्शन है उनमें टाइम की बात किया गया है, तो इनकी जो टाइम आउट होगी क्या वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टीपी हम रिप्रेजेंट करें, टीपी से ये क्या है, टाइम ऑफ फॉर प्रोटॉन टू, मतलब कम आउट कितने टाइम में जो प्रोटॉन बाहर आ रहा है उसके लिए देखते हैं। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये वैल्यू होती है हमारे पास, और जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये कितनी है, ये आर्क बन रही है यही प्रोटॉन के लिए, तो ये आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, आर की जो लेंथ है वो देख लेते हैं। तो आर की जो लेंथ है ये क्या है, यहाँ पे एंगल 2 थीटा हो गया, और ये तो आर को हम लिख सकते हैं कि एंगल इनटू रेडियस। ओके, ये वैल्यू होती है आर की, अपॉन में क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो यहाँ से एंगल कितना है, 2 थीटा, और रेडियस हमने मान लिया कि वो आर पी बना रहा है प्रोटॉन के लिए, और वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ओके, अब क्या करते हैं, r की जो वैल्यू होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में और उसके टर्म में लिख देते हैं, रेडियस के टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के टर्म में लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 थीटा अपॉन v इंटू ये क्या आ जाएगा, एम पी इंटू वी अपॉन ई बी। तो ये टोटली वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा एम पी बाई बी। ओके, ये क्या आ गया, टाइम आ गया प्रोटॉन के लिए। सिमिलरली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, टी ई। तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हमारा एंगल कितना है, तो सॉरी ये जो आर्क है, आर्क की लेंथ क्या होगी, तो टोटल एंगल हमारा ये वाला कंसीडर करेंगे, इधर वाला जो एंगल है ये कंसीडर करेंगे, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके,
2 पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा ये, और रेडियस क्या हो गया आर ई के इक्वल मान लिया हमने, अपॉन में क्या आ जाएगा v। इसमें भी क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन v, और आर ई की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी एम ई वी अपॉन, हमने क्या कर दिया ई बी, इसको सही से लिखते हैं ई इंटू बी। तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा एम ई अपॉन ई बी। बी और ई की वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों के मासेस अलग है, दोनों के लिए एंगल जो है ये क्या है अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टी देयरफॉर टी पी नॉट इक्वल टू टी ई, मतलब दोनों क्या होंगे अलग अलग टाइम पे बाहर आएंगे, दोनों के लिए जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो बी ऑप्शन के साथ साथ डी ऑप्शन भी सही है। ओके, डी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। Hello, we are given with the question, and the question says a particle of mass m and charge q moving with velocity v enters region 2. So it enters region 2 normal to the boundary as shown in the figure, right? Region 2 has a uniform magnetic field v perpendicular to the plane of the paper, right? It is coming out of the paper. The length of the region 2 is L. So which is the correct option? So first of all, V is perpendicular to B, right? So there would be a force acting on the particle, right? So according to right-hand Fleming rule, the particle would experience this type of motion, right? So what we can say is that centripetal force would balance the magnetic force from here. So that would be mv square by r. Let's say the radius is r, that is equal to qvb. So from here r would be equal to mv by qb, right? Or we can say v is equal to qrb by m, right? So if it just enters this region, right? So that means R is greater than L if it enters third region, right? So that means mv by qb would be greater than L. So that implies that v should be greater than qlb by m, right? If v is greater than qlb by m, then it enters region 3. This is correct, this is wrong, right? Now the path length of the particle in region 2 is maximum. Path length is maximum when velocity v is equal to qlb by m. So this is the path length, right? This is maximum, that is equal to L, when the velocity is equal to r is equal to L here, right? So this is also correct, right? Now time spent in region 2 is same for any velocity v as long as the particle returns to region 1. If the particle returns to region 1, right? So the time period would be equal to t by 2. So that would be equal to pi m by qb, right? Since time period is what? 2 pi m by qb for circular motion, correct? Which is independent of v. T does not depend on velocity, right? So if it is coming back to the region 1, it does not depends on the velocity. Any velocity of the particle will return, like time spent in the region 2 is same, right? So this is correct. So our answer is option A, option C and option D. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं या प्रोटॉन मान सकते हैं, ठीक है। इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑरिजिन विद अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर, तो आपने उसको v वेक्टर की वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म E वेक्टर और B वेक्टर बताया गया। The velocity v, E and B are given in the columns. The quantities
और पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। देखो आपके पास जो ई नॉट है, बी नॉट है, पॉजिटिव है, ठीक है। पहला कॉलम में आपको बताया उसने कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका बी है वेक्टर है वो भी है एक्स एक्सिस में, ठीक है। ऐसा कुछ दिया गया है आपको। तो ओवरऑल आपसे ये पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है उसका कि इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने का मतलब है कि पार्टिकल पर लगने वाला एफ नेट जीरो हो जाए। तो एफ नेट जीरो हो जाए, सिंपल सा कहने का मतलब उसका ये है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा सेम मैग्नेटिक फोर्स लगने लगे। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू क्यू वी बी और ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएं तभी ऐसा पॉसिबल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बी के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, ये कहने का सेंस होता है। और दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हों। तो अपोजिट होने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाए। ओवरऑल कहने का सेंस यही है कि अपोजिट हो, ठीक है। तो पहले में देखो क्या है कि आपका ऑप्शन 1 दिया है कि आपका पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लग रही है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका, वो भी जेड डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो दोनों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि जो एफ नेट होता है किसी भी पार्टिकल पर वो होता है क्यू ई प्लस का क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये टर्म तभी जीरो होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो। यहाँ से आप ई वेक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का वी क्रॉस बी, ठीक है। तो वी क्रॉस बी आने का मतलब ही यही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। यानी कि बी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, कहने का सेंस ये। तो यहाँ पर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन 2 में देखो क्या है कि आपके पास प्रोटॉन है जिसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड ही खत्म हो गया, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा होगा ना। तो ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 में दिया है कि आपके पास पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है और उस पर जो वेलोसिटी है उसकी ई नॉट बाई बी नॉट है और मुझे देखने में तो लग रहा है काफ़ी सही जा रहा है ये। और उसके बाद उसने उसका थर्ड पार्ट लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस में, और एस यानी कि जेड डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। तो देखो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल की वेलोसिटी है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपका वी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट भी क्लियर हो जाएगा और आपको डायरेक्शन जब मैनेज करोगे तो भी सेम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वी क्रॉस वी आपका है, वी आपका क्या दिया गया है जे कैप और ये आपका है के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर ऑप्शन 3। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने कि इन विच केस द पार्टिकल विल डिस्क्राइब हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो देखो सिंपल सा केस है कि पार्टिकल को जेड एक्सिस में जाना है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में जाना है और एक हेलिकल पाथ बनाना है। हेलिकल पाथ बनाने का सेंस देखो ये हुआ कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो जेड डायरेक्शन में जाने की होगी और जो वो सर्कल बना रहा होगा हेलिकल पाथ का वो भी जेड डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, यानी कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है।
तो उसके पास एक इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी और एक वो सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लग रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगने चाहिए, ठीक है। ये केस समझ में आ गया। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि पहला ऑप्शन है आपके पास कि 4-1s। देखो 4-1s में क्या है, तो पहला ऑप्शन है 4-1s। देखो फोर्थ उसमें क्या होगा कि पार्टिकल का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो पार्टिकल पर जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा जेड एक्सिस की तरफ। तो इसका सीधा सा सेंस ये हो गया कि पार्टिकल हेलिकल पाथ तो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हेलिकल पाथ के लिए ये जरूरी है कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो और जो मैग्नेटिक फोर्स हो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो या तो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। या फिर मतलब सीधा सा बात है परपेंडिकुलर हो जेड एक्सिस के, सेंस ये है कहने का, ठीक है। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब ऊपर नीचे जा रहा हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसी तरह से। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि 2-2r, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा हो और एक्स इस एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, कहने का सेंस ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं हुआ तो पार्टिकल में हेलिकल पाथ को नहीं मूव परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ऑप्शन 3 में देखो 3-3p, तो 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, सही है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी सही है। और उसके अलावा क्या दिया है, तो ओवरऑल सीन क्या होगा कि ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या दिया है, ये ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है सबका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जब जेड एक्सिस के लॉन्ग हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तभी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल हेलिकल पाथ में मोशन कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर से ऑप्शन 1 जो होगा ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन 1 में क्या है कि पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो जब जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जब पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा कि जेड एक्सिस के लॉन्ग आने लगेगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड -x डायरेक्शन में है, तो यानी कि अगर आप इसको -x डायरेक्शन मान लेते हैं तो इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करने लगेगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। और इसमें देखो क्या दिया गया कि इन विच केस द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन along निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में मूव करने का सीधा सा सेंस है कि पार्टिकल पर एफ मैग्नेटिक 0 होना चाहिए, और एफ मैग्नेटिक 0 होने का सेंस ये दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो बी वेक्टर 0 हो जाए या वी वेक्टर 0 हो जाए या वी और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है। इन ये में से कोई भी केस होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, तभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें से देखो आपके पास है तीसरा दूसरा आर, तो तीसरा यानी कि वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर स्टार्टिंग में तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा यानी कि तीसरे के बाद क्या है दूसरा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका -x एक्सिस में लग रहा है और आर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो y डायरेक्शन में है। तो देखो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है -x एक्सिस में, तो पार्टिकल -x डायरेक्शन में मूव करेगा, और y एक्सिस में अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड तो वो इसको हेलिकल पाथ में मूव करा देगा। तो यानी पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा, तो ऑप्शन 1 विल नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन 2 में है 4-2s, तो देखो 4-2s में क्या है कि x एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है और -x एक्सिस के लॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस के लॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें y एक्सिस तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब
जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। मतलब ये केस तभी पॉसिबल है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वो तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं हो रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने लगे, मतलब वाई एक्सिस से मूव करना स्टार्ट करे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, वो तो उसको रोटेट करवाएगा ना, उसका पर जो फोर्स लगेगा इसका QVB, वो क्या करना चाहेगा, इसको वो फोर्स प्रोवाइड करेगा और उसको एक सर्कल में रोटेट करा देगा। इसकी वैल्यू होगी QV/MB। ठीक है, इस रेडियस से उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। सीन ये बनना चाहिए, तो तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि वाई डायरेक्शन में उसके पास फोर्स हो। तो यानी कि सेकंड उसका ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन 4 में ही है। अब ऑप्शन 4 में देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ऑप्शन 4 में 2, 3, Q। तो 3 पार्ट क्या है कि -x एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है। तो पार्टिकल क्या है कि मान लो ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, -x एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो y एक्सिस के लॉन्ग सॉरी मूव कर रहा है और -x एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। और तीसरा उसने क्या बताया है, Q, और Q x एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ये आपका लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जेड में, और x इधर लग रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके। तो नो ऑप्शन कैन डिस्क्राइब। ठीक है, थैंक यू। Hello, we are given with a question, and the question says a neutron, a proton, and an electron and an alpha particle enters a region of constant magnetic field with equal velocities. The magnetic field is along inward normal to the plane of the paper. The tracks of the particle are labeled, right? The electron follow track and the alpha particles follow track what? So, first of all, since we have radius of the track for any particle, right? So that is R equals to mv/qb, right? Since velocity is same and magnetic field is same, so R would be only proportional to m/q, right? So for B, right, it is in opposite direction, so it would be for electron, right? And a neutron will go without any deflection because it has no charge, right? So C is for neutron. Since we have this electron has opposite charge, so it will be in this direction, the force would be in this direction. So this is for electron, and that has least, so the radius of this would be also less. A is for protons, right? Because for m/q, the proton has less m/q than alpha particle, and B is for alpha particle, right? So what we can say is that electron follow track D and the alpha particle follow track B. These are the answers. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एनर्जी अलोंग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। व्हेन दे पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं जो कि उनके क्या है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके वो परपेंडिकुलर है, तो दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। तो वो क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे जिनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स होता है और वो सर्कुलर मोशन करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये क्या होता है, q
वी बी के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम रेडियस को देखें तो ये v से एक क्या होगा, v पहले कैंसिल हो जाएगा, एम वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन आर, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कैनेटिक एनर्जी दिया है, तो कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो मोमेंटम के टर्म में हम लिख सकते हैं हम लोग √2 के एम अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू इंटू बी, ओके। तो कैनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से अगर रेडियस को हम कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, √2 एम के अपॉन क्यू इंटू बी। तो b की वैल्यू, k की वैल्यू और q की तो ये जो r की वैल्यू आएगी, q की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो r प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, √m के, क्योंकि एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ चार्जेस, क्योंकि k की वैल्यू भी सेम है, b की वैल्यू भी सेम है और q की वैल्यू भी क्या है, सेम है। अब जो रेडियस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, ये होता है 6.27 × 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ग्रेटर होगी, ओके। आर पी जो होगा ये ग्रेटर होगा आर ई से, तो यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम नहीं होगी, प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की रेडियस से। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, और एंगल कितने एंगल पे, 85 डिग्री पे, ठीक है। करा कि टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनसे 85 डिग्री पे ये इंटर कर रहा है। द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल, तो जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्किल होगा। तो हमें ये बताना है कि ये क्या दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो अब क्वेश्चन में ये दिया है हमारे पास कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है, 85 डिग्री पर। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, ये हमने ड्रॉ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ओके। अब इसमें ये जो पार्टिकल है किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है। जैसे ये हम उसको थोड़े डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये v वेलोसिटी से किसी एंगल पे जा रहा है। तो अगर हम इसको x डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, ये थीटा हो गया, तो इधर क्या आएगा, vx cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, vy sin थीटा, और थीटा कितना है, 85 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट है इसके, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से vx इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, और v sin थीटा इसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से जो पार्टिकल होगा इसका जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, हेलिकल हो जाएगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। अगर ये 90 डिग्री पे होता, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता, तो cos 90 0 हो जाता और ये केवल सर्कल में मूव करता। तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इन दैट केस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तब जाके वो क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। एनी एंगल पे जब उसको रिलीज करते हैं तो कैसा पाथ लेता है, हेलिकल, ओके। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला है कि ये सर्कल में मूव करेगा, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, ओके। इस क्वेश्चन में दिया गया कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट। तो कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि उसके ऊपर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, फिर भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो यही हमें बताना है। तो जब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू v क्रॉस b होता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा तो जो एनर्जी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो गई,
परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड के, और एफ जो किस पे डिपेंड करेगा, अब डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, क्यू पे भी डिपेंड कर सकता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। और अगर हमारा वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है, ओके, अगर ये पैरेलल है किसके, बी के, तो हमारा इस केस में फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इस केस में, इन दिस केस फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, बना होता है, तो पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगता है, इस वजह से हमारी जो एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो v चेंज नहीं होगा, फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो देयर इज़ नो एनी चेंज, देयर इज़ नो एनी चेंज इन एनर्जी। ओके, एनर्जी में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, यही हमें बताना था यहाँ पे। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है कि फोर्स भी लगता है फिर भी एनर्जी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि द रीजन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू L इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म स्टडी मैग्नेटिक फील्ड B नॉट K कैप। रीज़न दिया गया है x इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू L तक कोई रीज़न है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना दिया है, B नॉट K कैप। ए पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी V नॉट I कैप। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और वेलोसिटी क्या है, I कैप डायरेक्शन में है। ट्रेवल अलोंग x एक्सिस एंड इंटर द रीजन, x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी थ्रू आउट द रीजन। ओके, मतलब हमें यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। अब ए केस में उसने हमसे क्या पूछा है, ए केस में उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ L if the particle emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity। जो पार्टिकल है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और कितना एंगल बना रहा है, इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री। और बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम स्पेंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें फाइंड करना है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सटेंड अप टू 2.1 L, अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, 2.1 L तक एक्सटेंड कर दिया जाए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि ये रीज़न है हमारा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न हो गया। इस रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है K कैप डायरेक्शन में और पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, और सॉरी ये तो पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि इसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाता, बट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है सर्कुलर रीजन में और उसके बाद क्या हो रहा है, V नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ये तो इसकी वेलोसिटी V नॉट है और इस पॉइंट से ये, तो ये हमारा हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट P है। ओके, इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जा रहा है। तो ये एंगल हमारे पास गिवन है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, इन दोनों लाइन को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, B इक्वल्स टू B नॉट K कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू L है। तो फर्स्ट केस में हमें बताना क्या है, फर्स्ट केस में हमें यही बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, L की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, वायर जो एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये किसके इक्वल होगा, QVB के। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mv/QB, ये r की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम इसको मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं ये A पॉइंट है, तो
ये हमारा क्या होगा, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए पी जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर इसको हम रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा और ये बी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, नॉट बाहर नहीं है, ये इस पॉइंट को बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी पॉइंट है। तो आर कॉस थीटा क्या होगा, ए बी के इक्वल आएगा, और आर साइन थीटा ये क्या आएगा, ए पी के इक्वल आएगा। और ओके ये डिस्टेंस आएगी इस एक्सिस के अलॉन्ग ये, ओके तो मैं उसको ए पी नहीं लिख सकता हूँ, ये ए पी नहीं हो, तो ये मान सकता हूँ कि ये एल के इक्वल आएगा। ओके ये हमारा क्या आएगा, एल के इक्वल आएगा। तो और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, आर साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एल, तो आर अपॉन 2 ये कितने के इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट एल इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एम वी अपॉन 2 क्यू बी। ओके ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इतने दूर तक वो क्या है, मतलब फैला हुआ है, बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड है इतनी रीजन तक। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उस फील्ड को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो फील्ड को कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, 2.1 L तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ओके तो ये क्या होगा, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे, जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर सकता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो अपना जो सर्कुलर मोशन है उसको कंप्लीट कर ले, मींस वो बाहर ना निकले फील्ड के, वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले उसमें, या मे बी वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके एज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से एंटर कर रहा है, वी नॉट आई कैप वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और फील्ड की जो लेंथ हो गई है इस बार ये कितनी हो गई है, उसने बोला है 2.1 लेंथ हो गई है। तो जो वैल्यू है एल की कितनी है, एम वी नॉट, ये वेलोसिटी वी नॉट है, एम वी नॉट अपॉन 2 क्यू बी, ये हमारा क्या है, लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके तो चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ओके ये यहाँ से और सर्कल में, और ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वी नॉट आई कैप हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जिस मोशन में मूव कर रहा था उसके ठीक उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है, 2.1 L है। तो ऑब्वियसली ये है कि 2.1 R अपॉन 2, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, R से, क्या है, ग्रेटर है। तो जब वैल्यू ग्रेटर है तो हम मतलब ये एज्यूम के यहाँ पे मतलब ये एजम्पशन ले सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, माइनस वी नॉट आई कैप, क्योंकि यहाँ एक सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन गया, पार्टिकल इस रीजन से एंटर किया और इस रीजन से फिर क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। ओके फर्स्ट केस में हमने ये देखा था कि पार्टिकल क्या हो रहा था, रीजन से बाहर चला जा रहा था, बट सेकंड केस में हमारा जो पार्टिकल है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता है और सेमी सर्कल ड्रॉ करके बाहर निकलता है। तो जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो माइनस वी नॉट आई कैप क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें अब क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, स्पेंड करेगा। तो सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टाइम, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए फार्मूला होता है 2πm अपॉन क्यू बी। ये वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है बी नॉट दिया है, सॉरी मैंने बी नॉट नहीं लिखा है, तो हर जगह क्या कर लेते हैं, बी नॉट कर लेते हैं। तो ये जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या होता है, इतना टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक सेमी सर्कल बना है, तो इसका अगर हाफ कर दें, टी डैश क्या होगा, t/2 के इक्वल होगा। तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी πm अपॉन
क्यू बी नॉट। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इतना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा। सो यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो जनरली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें बस क्या करना था कि डायरेक्शन को देखना था कि जो गिवन वैल्यू हमारी एल की आई है ये इतनी ही आई है, और यहाँ पे अगर हम क्या करते 2.1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। सो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन गन जी है, इमिट कर रही है इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कितना है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो। द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, स्पॉट एस जो है उसको हिट करना है जो कि 0.1 मीटर अवे है। एंड द लाइन जी एस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, जी एस जो लाइन है वो क्या करी 60 डिग्री एंगल बना रही विथ एक्स एक्सिस। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी जी एस एग्जिस्ट कर रहा है, पैरेलल टू जी एस एग्जिस्ट कर रहा है। फाइंड बी पैरेलल टू जी एस, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड बी पैरेलल टू जी एस एग्जिस्ट इन द रीजन आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन के आउटसाइड ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीडेड टू टेक द इलेक्ट्रॉन हिट एस, बी की वह मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके क्या करे, एस को हिट कर दे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में गिवन है, तो और वेलोसिटी है ये क्या करी है, तो अगर हम इसको वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में रिसॉल्व करें तो यहाँ हमारा क्या आएगा v cos 60 डिग्री आएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा v sin 60 डिग्री आएगा। ओके, तो अगर वहाँ से वहाँ तक जाने का जो टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो वहाँ से पहुँचने में, एस पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है। ओके, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो गिवन है, मतलब टाइम इनटू वेलोसिटी, ये हमारे कितने के इक्वल है, जी एस के इक्वल है जो डिस्टेंस है। तो टाइम क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ये 2πm/q b के इक्वल होता है, और वेलोसिटी हमारे उस डायरेक्शन में क्या है v cos 60 डिग्री है। ओके, और ये डिस्टेंस कितने के इक्वल दे रखा है 0.1 मीटर के। तो अब हमें क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये क्या आएगा 2πm v cos 60 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा q, और इनटू क्या आ जाएगा 0.1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखा है, एनर्जी कितना दे रखा है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी 2e/m के इक्वल होती है। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या करते हैं, अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2mv², वहाँ से हमने क्या कर दिया v को निकाल दिया, ये अंडर रूट में आएगा। तो अब क्या करते हैं, v को पुट कर देते हैं। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 2πm, v की वैल्यू 0.1 इंटू 2e/m, ये हमने v की वैल्यू पुट कर दिया cos 60 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या होता है, b इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा। अब हमने ये जो वैल्यू आई है इसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये 2π अपॉन q इंटू 0.1 इंटू यहाँ से m एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2me, ये हो जाएगा। ओके, cos 60 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2π अपॉन q, q की जो वैल्यू है ये तो यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये रूट में हो जाएगा, इसको थोड़ा तो ये इंटू 2 इंटू
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ओके, तो 2 × 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10⁻⁻19 भी आएगा, और cos 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 ये। तो यहाँ से b को जब सॉल्व करेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 4.737 × 10⁻³ टेस्ला। तो ये क्या आ जाएगी b की वैल्यू आएगी। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तब जाके वो क्या करेगा उस स्पॉट एस जो है उस पर वो हिट करेगा। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। Hi everyone, the question is a beam of protons with a speed 4 × 10⁻³ meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of the protons is close to. ओके सो बच्चों इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे हमारा क्या है एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स है और उसका स्पीड कितना गिवन है बच्चों, स्पीड v की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ये गिवन है। और ये कहाँ एंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बच्चों 0.3 टेस्ला के इक्वल, और किस एंगल पे एंटर करता है 60 डिग्री पे ये एंटर करता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज क्लोज टू। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पिच निकालना है। ओके, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे वी टेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों मैं इनटू द प्लेन यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे इनटू द प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम है बच्चों, ठीक है, किसका, प्रोटॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, प्रोटॉन का बीम है बच्चों यहाँ पे हमारा, ठीक है, प्रोटॉन बीम है, ठीक है। ये एंटर करता है और इसका स्पीड कितना है 4 × 10⁻³ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला है, थीटा 60 डिग्री है। ओके, तो जब बच्चों यहाँ पे देखो थीटा जो है वो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। अगर सपोज करो 90 डिग्री होता तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल की बीम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, बट यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा है यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। तो ये क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना पाथ होगा इसका वो कैसा होगा, हेलिकल होगा, यानी कि लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा जो पिच का फॉर्मूला होता है, ओके, तो जो पाथ है यानी कि पिच क्या होता है, पिच होता है यहाँ पे हमारा, पिच पी से इसको डिनोट करते हैं। तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos 60 डिग्री इनटू में टाइम पीरियड, ओके, तो ये होता है बच्चों हमारा पिच। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमें स्पीड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैल्यू दे रखी है, टाइम हमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो टाइम यहाँ से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टाइम के लिए यहाँ से बच्चों अगर बात करें टाइम की, ओके, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है t = 2πm अपॉन में QB। ओके, तो प्रोटॉन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पिच p = कितना आ जाएगा, u cos 60 डिग्री, टाइम पीरियड हो गया 2πm अपॉन में QB, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो p = कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी कितना गिवन था 4 × 10⁻³ और यहाँ पे देखो u की जगह यहाँ पे v दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी है, तो सिंपली इसको मैं u कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये u हो जाएगा अपना, u कितना है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ओके, 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इनटू में 2πm, मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67 इनटू में 10⁻⁻27 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों 0.3। तो यहाँ से हमारा जो पिच है ऑफ दिस हेलिकल पाथ
वो कितना आएगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 2 2 जा 4, ओके सॉरी 2 से ये कितनी बार 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई यहाँ पे रह जाएगा हमारा सिंपली, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 4, ओके सो 4 इंटू 1.67, ओके ये करेंगे यहाँ से तो 6.68 और मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 10⁻³ है और 10⁻⁻27 है, ठीक है। और ये 10⁻³ कितना है -19, ओके तो प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके 19, ओके और ये हो जाएगा 19 और +3 ये हो जाएंगे 22 और ये -27 है तो 10⁻⁻5 रह जाएंगे ऊपर और डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा 1.6 इंटू में 0.3, इसको 0.3 को सही से लिखते हैं बच्चों, इंटू में आएगा 0.3, ठीक है। तो पिच P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.68, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0.3 करते हैं यहाँ से 0.48 आ जाता है, 6.68 इंटू में 10⁻⁻5 अपॉन में यह कितना आएगा 1.6 इंटू में 0.3 आता है 0.48 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 6.68 डिवाइडेड बाई 0.48 करते हैं तो बच्चों ये आता है 13.91, ओके P जस्ट नियरली इक्वल टू 13.91 इंटू में 10⁻⁻5, ओके सो बच्चों दिस इज द पिच, okay so bachcho this is the required solution for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. So guys, here in this question it is given that a particle of mass 1.6 into 10⁻⁻27 kgs and charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs enters a uniform magnetic field of 1 Tesla as shown in this figure. So the speed of the particle is 10⁻⁷ meters per second. So the distance PQ will be, okay, so here we need to find out the value of distance PQ. So if you can see in this particular figure, so this is a point P and this is a point Q that we have. So this crossed lines entirely is a magnetic flux. So the magnetic flux value is also given as 1 Tesla, okay, and we have the particle mass value as 1.6 into 10⁻⁻27 kgs, and also charge value also we have given as 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, okay, and also the speed value also we have as 10⁻⁷ meters per second. So according to this given parameters we will write, so according to this particular figure and the given data we will write M into V divided by QB, okay. So we can simplify this and we have the value of M, V, Q and B. So just need to substitute the values 1 minus 6 into 10⁻⁻27 into 10⁻⁷ divided by 1.6 into 10⁻⁻19 into 1, okay. So the value we will get is 10⁻⁻1. So in this triangle OPQ, so if you look into this particular figure, so this is the triangle OPQ that we have, okay. So in that PQ value will be equals to 2R into cos theta, okay. So we will write under root of 2 into 10⁻⁻1. So we will get the value of PQ as 0.142 meters. So this is the distance between the P and Q that we have got. So out of these 4 options, if you see, we have option A as 0.14 meters. Actually the value we have got is 0.142, but we can choose 0.14 also, though the same value only. So option A is the correct answer for this question. Thank you.